Hello students, how are you all? I am Radha Mehra from Gyanstan, and this video is containing this particular topic, and I am covering Indian Economy Class 12 NCERT book, and the chapter name is Rural Development. And in this video I am going to cover the meaning of rural development and the process of rural development. Okay, so first of all, we need to understand the concept. Name is meaning of rural development. Now, the name itself clarifies that when there is a development in the rural area, right, that's what is known as rural development. But we can't write this. So the question comes, how do you identify whether the development has happened in the rural area or not? मतलब कौन से parameters हैं जिनसे आपको लगता है कि रूरल डेवलपमेंट हो गई है? तभी तो मैंने यहाँ लिखा प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीज को डेवलप करें कि आपको लगे कि रूरल एरिया डेवलप हो गया। अब इसके लिए बुक्स को देखने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर इफ यू क्लोज योर आईज यू कैन रीच टू इमीडिएटली टू द रूरल एरिया इफ आई आस्क यू टू रीच टू रूरल एरियाज। ओके, हैव यू रीच्ड? क्लोज योर आईज एंड इमेजिन। नाउ व्हेन यू आर एबल टू इमेजिन अ रूरल एरिया, you can see the very first thing which comes in your mind here is the agricultural area. Okay, because when you say rural means what is there? Primary sector is there, right? So majority of the primary sector, I would say not majority, even the whole of the primary sector is there in rural areas. So आंखें बंद करके देखा तो मुझे फील्ड नजर आ रहे हैं जहाँ पर खेती हो रही है। Okay, अब डेवलपमेंट करना हो तो क्या करें भाई? क्या करें? उनकी कनेक्टिविटी के लिए जो रोड्स मुझे दिखती हैं वो कच्ची रोड नजर आती है, तो अगर वहां पक्के रोड दे दिए जाएं जिसे हम ऑल वेदर रोड्स कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वहां एरिया डेवलप हो जाएगा। अब रोड्स क्या कर देंगी भाई? वहां पर रोड्स से क्या होगा? कनेक्टिविटी टू द मंडीज और टू द अर्बन एरियाज, लोकल क्लोज बाय टाउन्स will be increased. So when there will be an enhancement in the connectivity of the rural area with urban area, so rural people will be able to go easily to the urban area to sell their product. All right, so that's a development for them. Now let's move further. Now what else is there? Now सब और क्या नजर आता है? schools होने चाहिए बच्चों के लिए, colleges कोई rural area में नहीं होते, hospitals ये भी facilities हो। इससे भी ज्यादा आप वैसे agricultural तक रहिएगा क्योंकि rural world है। अगर इन लोगों को वहाँ गोडाउन्स दे दिए जाएं, क्यों? Because most of the time these people sell their crops under stress because they do not have space to keep their crops because they are not rich. All of them are not rich, so they can't keep their crops in the stock, waiting for the right time to come and sell. Now, when I say right time means right price to get. So what do? They under stress they sell the whole product, sometimes on throwaway prices. Now when I say throwaway prices means very less price they get, क्योंकि वो किसमें है? उन्हें जल्दी है ताकि उन्हें फटाफट से पैसा मिले, तो वो अपनी क्रॉप को जो इतनी मेहनत से उगाई गई होती है उसे ऐसे ही बेच देते हैं। इसे बोलते हैं डिस्ट्रेस से। आगे टर्म आ जाएगी, नहीं भी आया तो आप प्लीज समझ लीजिए। डिस्ट्रेस यानी अंडर स्ट्रेस व्हेन यू सेल योर प्रोडक्ट। Now why are you under stress as a farmer? Because I don't have space to keep my production. Now supposingly if I have space, whether it is given by the government, where I can keep my produce safe for some time, waiting for the right time to come, I would be very happy. So if government can provide them with the godowns or cold storages, so it is going to be an additional help for them. So इस तरह की आप सारी बातें इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। I'm sure I gave you the fair idea how can you develop. Alright. So let's reach to the handouts. The very first question which is there is define rural development. So it is the underline the word continuous and comprehensive term. ठीक है? पहले तो ये continuous process है, comprehensive ऊपर से socio-economic process. Do not miss these words. Now how it is continuous? क्या ऐसा होता है कि एक बार डेवलपमेंट हो गई वहाँ एरिया में, हमने जिस एरिया को कनेक्टिविटी कर दी, गोडाउन दे दिया, अब इनको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, अरे पड़ेगी। अब और चीजें चेंज होती हैं। अब जैसे हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन,
किसान कार्ड्स बन रहे हैं, किसान की सॉइल टेस्टिंग की जा रही है, दैट्स द लेटेस्ट गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट, मिस्टर मोदी इज वर्किंग ऑन दैट, सो उनके कार्ड्स भी प्रोवाइड करेंगे। इट मींस इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट दैट वंस डन फॉर ऑल, इट्स नॉट लाइक दैट। सो वंस यू डन इट, अभी के लिए हो गया, फिर जैसे कोई चेंजेस आएंगे फिर उन्हें दोबारा से वहां जाकर इन्वॉल्वमेंट, यानी उनकी प्रोसेस जो है, ये डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कॉम्प्रिहेंसिव, व्हेन आई से कॉम्प्रिहेंसिव, समझते हैं वाइडर टर्म है, मतलब सिर्फ एक एंगल को ही ठीक नहीं करना, जैसे मैंने कहा सिर्फ एग्रीकल्चर को नहीं, एजुकेशन को, हेल्थ को, सारे सेक्टर्स को लेना होता है। ऊपर से ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? सोशियो मींस उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करना, जिसमें कि हेल्थ भी आएगी, हेल्थ फैसिलिटीज आ जाएंगी, एजुकेशन आएगा, राइट, पार्क्स एंड ऑल दीज थिंग्स, रिक्रिएशनल थिंग्स भी आएंगी, ये सोशल, सोसाइटी अपलिफ्टिंग ऑफ द पर्संस लिविंग। इकोनॉमिक, व्हेन आई से, मींस देयर मॉनेटरी कंडीशन, अर्निंग्स को भी बढ़ाना है किसी तरह से। तो अभी आपने क्या सीखा, मैंने क्या समझाया? 1, it's a continuous process. 2, it's a comprehensive process. You have to include all the areas in this. It's not only the agriculture, it is the health, it is education, it is everything. Okay? And it's a socio-economic process. याद रहेगा आपको? करना होगा। Attempting to improve. क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं हम, क्या इंप्रूव कर रहे हैं? रूरल लाइफ का जो इम्पैक्ट है उसे हम एस्पेक्ट्स, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ गोइंग टू एनहांस। बीइंग क्लियर हो गया? चलिए आगे चलें। अब प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू ये हो सकता है? सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर दीजिए, यानी वहाँ के लोगों को पढ़ा लिखा दें, उन्हें अच्छी हेल्थ दे दें, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो वहाँ डेवलप हो जाएगी। यानी रूरल एरिया में कौन कौन है? लोग हैं, लैंड है, इन सब चीजों पे हम डेवलपमेंट कर देंगे। तो लोगों को डेवलपमेंट कैसे करेंगे जी? उनको एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे, उनकी ट्रेनिंग्स करेंगे, इस तरह से। देखिए क्या लिखा है, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी, स्पेशली फीमेल, क्योंकि विलेजेस में फीमेल्स को स्कूल जाना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, they are supposed to learn the household chores, so it is not good. So उन्हें भी कन्वे करना कि फीमेल लिटरेसी भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली दिस एजुकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए उनके। Then second, health facilities, better health facilities for physical growth. As I told you, it is the both the things, right? Physically fit रखना, health, education, all these parts are needs to be covered. दूसरा आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया था क्या? It involves improvement in electricity. अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे villages हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है, अभी भी हैं। I'm sure you are surprised to listen to this. Yes, there are, but yes, अब वो नंबर कम होता जा रहा है। सो अगर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी, आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी से क्या फायदा होगा? होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा? हर काम इलेक्ट्रिसिटी से होता है। अभी वो हाथ से या बैलों के हेल्प से जो है वो खेत में अपना काम करते हैं, फिर ट्रैक्टर्स आ जाएंगे, स्पेशली ट्यूबवेल्स वर्क करेंगे, पानी प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज हो जाएंगी, सो इससे फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रेडिट मार्केटिंग, यानी क्रेडिट यानी उधार पे जो पैसा लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर फार्मर्स रूरल एरियाज में पुअर हैं, मार्जिनल हैं, तो उन्हें उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती कि वो सेविंग्स में से लगा दें पैसा, इतने रिच नहीं है, तो दे रिलाई मोर ऑन क्रेडिट। हम आगे जाके इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो उन्हें उधार पर डिपेंड करना पड़ता है। अगर एक क्रेडिट सिस्टम अच्छा वाला आ जाए, जैसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट थ्रू, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, एक अच्छा सिस्टम जिससे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। मार्केटिंग यानी उनके सामान को बेचने के लिए सारा जो सिस्टम है वो भी इन प्लेस आ जाए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी including construction of village roads and feeder roads to nearby highways. Feeder road समझते हैं, जो connectivity देती है highways को, right? Better facilities for research and extension, agricultural research, जैसे मैंने कहा किसान कार्ड बन रहे हैं, soil testing cards बन रहे हैं, तो उनकी भी facilities आ जाएं, and information dissemination यानी broadcasting, digitalization, ये सब हो जाए तो infrastructure भी develop हो जाएगा। तो क्या क्या develop किया अभी तक आपने? नंबर 1 human resource, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरे पर चलते हैं। अब वहाँ लैंड है,
अगर लैंड रिफॉर्मेशन हो जाए, जो कि हमने पढ़ा है अपने पास्ट में 1950 to 90, many governments tried to do land reformation by taking away the excessive land from landowners and giving away to those who are actually working on that tillers, right? लेकिन वो सक्सेसफुली ज्यादा चला नहीं, तो अगर ये हो जाता है तो भी काफी हद तक हम रूरल डेवलपमेंट कर पाएंगे। क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, एलिमिनेटिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशन। अब कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है? जो जमींदार है वो तो काम नहीं कर रहा, उसकी सिर्फ जमीन है, तभी ही इज कॉल्ड जमींदार, मींस द वन हु इज होल्डिंग द लैंड। नाउ ही इज नॉट वर्किंग एक्चुअली ऑन दैट। हु इज वर्किंग ऑन दैट? द टिलर। The tiller, the whole day he is working hard on that, and he most of the cases he has no rights on the crop. He gets some peanuts out of it. Now when I say peanuts means negligible money. So he has no right, the whole right will be in the hands of zamindar. He will sell the crop outside and enjoy the profit. So this should not happen. अगर ये चीज हटा दी जाए, ये जो लैंड का रिलेशन है, ठीक है भाई तुमने टिलर को दिया, आप अपना कॉन्ट्रैक्चुअल मनी ले लीजिए और बाकी का सारा राइट उसको दीजिए जिसने हार्ड वर्क किया। बट इट इज नॉट हैपनिंग, सो एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ लैंड टू द टिलर। क्या करना चाहिए हमें? इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। लैंड टू द टिलर, द वन हु इज वर्किंग ऑन द लैंड शुड हैव राइट्स ऑन द क्रॉप्स। ऑलराइट। Improvement of socio-economic condition. Again, so socio means overall growth, education, skills development, and economic means monetary wise. Condition of rural poor by widening their land base. किसी तरह से उनके land base को बढ़ाकर हम उनकी socio-economic condition बढ़ा सकते हैं। Increase agricultural productivity. Even if they have small piece of land, उससे भी वो बहुत कुछ उगा सकते हैं, क्योंकि वो अभी पुरानी सोच के हैं, ट्रेडिशनल सोच के हैं, इसलिए दे आर नॉट टेकिंग द फुल एडवांटेज ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड। सो इफ वी गाइड देम, हम आगे पढ़ेंगे कि अब तो बहुत सारे केसेस में जो फार्मर्स हैं दे आर गेटिंग एजुकेटेड, इवन देयर चिल्ड्रन आर गेटिंग इन्वॉल्वड इनटू दिस, सो दे आर they know better according to the weather what should they plant और किस चीज की डिमांड है, आपको समझ लें। लेकिन पहले वाले जो ट्रेडिशनल आउटलुक क्या था, वही जो पहले से जमीन में लगा रहे थे वही लगा। सो क्या हो रहा है? इवन जो है लैंड, अब तो सॉइल टेस्टिंग होने लग गई है। क्यों? ताकि उन्हें बताया जाए कि इस सॉइल में कितना मॉइस्चर है, कितना क्या है, इसमें कौन सी चीज अच्छे से उग सकती है, वो लगाएं ताकि उनको फुल एडवांटेज मिले। मल्टी क्रॉपिंग इज अनदर वे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, इसमें हम आगे स्टडी नहीं करेंगे, राइट। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, पॉवर्टी को एलिविएट किया जाए। तो व्हेन आई से पॉवर्टी, हम जानते हैं कि बहुत सारी जो पॉवर्टी का जो रूट है वो रूरल एरिया में है, ओवरफ्लो होकर वो अर्बन में भी पहुंच जाता है, बिकॉज दे कम इन अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ फूड, बेटर लाइफ एंड जॉब, राइट। सो अगर हम उसे एलिविएट करें, अबाउट 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन. So there is a serious need for taking serious steps for alleviation of poverty and bringing improvement in living conditions of weaker sections. Right? Last point is development of the productive resources of each locality to enhance opportunity of employment. यानी फार्मिंग के अलावा वो ऐसा क्या करें कि उनके पास पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई सोर्स हो, तो उन्हें सिखाया जाए कि नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या क्या हैं, वो हम इस चैप्टर में एंड में पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, सो सोर्सेज आर डन. व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट इट? ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, और क्या पढ़ा आपने? हमने क्या क्या किया बच्चे? लैंड रिफॉर्मेशंस करना है, और क्या करना है? पॉवर्टी को हटाना है, और कुछ इनोवेटिव थिंग्स करनी है जिससे कि उन्हें other than farm activities they should be involved in non-farm activities. Did you get that? So this was the question. Next topic is rural credit, which will be covered in the next video. Bye bye, take care.